Hello everyone, this is Vani here. You are watching English with Vani, and today I come up with few vocabs which is related to Hindu, and we are gonna discuss about those vocabulary. And that session is super interesting and super exciting, but you should have to have some patience, okay, about that. Let's just start with our first vocab. All right. So the first one is tweak. Tweak. So tweak, actually this word have two meaning, and the first one is chutki bajana. What it is? Chutki bajana. So the first one is chutki bajana, जिसके synonyms होते हैं horse and fast. Okay. The second one, it means reform, some kind of improvement. हिंदी में इसको बोलेंगे सुधारना या बेहतर बनाना. क्या होता है? सुधारना या बेहतर बनाना. Improve a mechanism or system by making fine adjustment to it. Okay, improve a mechanism or system by making fine adjustment to it. तो क्या कर रहे हैं आप? किसी भी mechanism और किसी भी system में, किसी भी plan में जब आप क्या करते हैं, उसमें improvement लाते हैं, ठीक है, जब आप उसमें रिफॉर्म लेके आते हैं, जब उसको मॉडिफाई करते हैं, जब आप उसको करेक्ट करते हैं या रिपेयर करते हैं चीज़ों को या इम्प्रूव्ड करते हैं, दिस इज व्हाट द ट्वीक. तो आज के हिंदू वर्ड में, हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ट्वीक मिलेगा, और ट्वीक का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? रिफॉर्म रहेगा. ठीक है, किसी भी प्रकार का रिफॉर्म. ऑलराइट, लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज persecution. Persecution. What it is? Persecution. What does it mean? Persecution. Persecution means उत्पीड़न. What it is? उत्पीड़न. उत्पीड़न क्या है? Means some kind of harassment. Okay? Oppression, assault, abuse, brutality. Okay? क्या है ये? उत्पीड़न. उत्पीड़न, इसके synonyms क्या होंगे? Harassment, oppression, assault, abuse, or brutality. Okay, brutality, that was the synonyms of persecution. और persecution को अगर आप देखेंगे तो let's just move to our example. There has been a persecution found throughout the history. There has been persecution फाउंड थ्रू आउट द हिस्ट्री. आप जब हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो हरासमेंट वाली दिखेंगी, परसिक्यूशन दिखेगा, राइट, उत्पीड़न दिखेगा. तो आप थ्रू आउट हिस्ट्री में देख सकते हैं. ऑलराइट, तो परसिक्यूशन किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, हरासमेंट, ब्रूटैलिटी, असॉल्ट, दैट इज व्हाट द persecution. Okay, let's just move to our next word, which is myrate. Myrate. What does it mean? Myrate. Myrate, something which is uncountable. Okay, something which is uncountable, you cannot count it. Okay, innumerable. Okay, that is what the synonym. Innumerable, numerous, countless. Okay, countless, numerous, innumerable. And in Hindi, असंख्य, किसी भी चीज़ों, किसी भी संख्या को जिसको आप काउंट ना कर पाए, असंख्य बोलते हैं उसको. असंख्य, जिसकी संख्या को गिना ना जा सके, राइट, विच इज कॉल्ड myriad. So let's just move to our example. The sea has a myriad aquatic animals. The sea has a myriad aquatic animal. The sea मतलब कि आपका समुद्र. क्या है समुद्र में? myriad. myriad means क्या होता है? असंख्य. एक्वेंटिक मीन्स जलीय, और एनिमल्स क्या हैं? जानवर हैं. तो असंख्य जलीय जानवर हैं. कहाँ पर? समुद्र में. तो द सी हैज myriad aquatic animals. Okay, this is what the example you can understand by this example, कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, myriad means क्या होता है? असंख्य होता है, मीन्स countless. All right, let's just move to our next word, which is feasible. Feasible. Feasible क्या होता है? Feasible means होता है something which is possible, something which is workable, something which is practical. Okay, which is practical, workable, pragmatic, viable.
और ऑलराइट, तो किसी भी चीज़ कोई अगर प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, वो वॉकेबल होती है या फिर पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कैसे किसको यूज करेंगे? फिजिबल को यूज करेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? संभव या व्यवहारिक। क्या बोलेंगे? संभव या व्यवहारिक। फिजिबल क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर मैं कहती हूँ कि डू यू हैव टाइम आफ्टर 9 o'clock, इज दैट फिजिबल फॉर यू? व्हाट डज इट मीन? मतलब आपके पास क्या 9 बजे के बाद समय है, और क्या आपके लिए फिजिबल रहेगा? फिजिबल मीन्स क्या आपके लिए संभव रहेगा, या फिर ये आपके लिए प्रैक्टिकल रहेगा, वर्केबल रहेगा, right? This is what it does mean. Okay, when you are saying something is possible, so possible, workable, feasible means practical होना चाहिए. This things should be practical. Okay, then you can use feasible. Okay, feasible means संभव और व्यवहारिक. Let's just move to our next word, which is internecine. Internecine. What does it mean? Internecine. Okay, internecine. So it means आपसी और परस्पर विध्वंसी. कैसा? आपसी और परस्पर विध्वंसी means something which is lethal, okay, brutal, fatal, reciprocal, okay, destructive, all right, destructive or ruinous. That is what the synonyms, right? Deadly, lethal, fatal, mutual, fatal, and reciprocal, ruinous, and destructive. Internecine मीन्स क्या हो रहा है? परस्पर विध्वंस हो रहा है. जब भी कभी दो ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट, उनके जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन हो, दो कंट्री हो, जब उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, दोनों ही कैसे हो जाते हैं? विध्वंसकारी हो जाते हैं. मीन्स दोनों ही किसी भी चीज़ को सोचने में सक्षम ही नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे का बुरा करने पर उतर आते हैं. इसको बोलते हैं इंटरनेसाइन. ओके, इंटरनेसाइन. सो an internecine conflict, war or fight is one which takes place between opposing groups within a country or organization. ठीक है, किसी कंट्री या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑपोजिट जो कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, फाइट होती है, और वो किस में बदल जाती है? डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, मतलब बर्बाद कर देने वाली हो जाती है, विच इज वी कॉल एज एन इंटरनेसाइन. Okay, internecine. Let's just move to our next word, which is anti-Semitic. Okay, anti-Semitic. It is adjective. What does it mean? सामी विरोधी. क्या बोलते हैं इसको? सामी विरोधी. अब आपको लग रहा होगा एंटी सेमेटिक, ये भी समझ नहीं आया, सामी विरोधी ये भी समझ नहीं आया, तो ये दोनों है क्या? ना तो हिंदी समझ आ रहा है, ना इंग्लिश समझ आ रहा है. एंटी सेमेटिक, ठीक है, सामी विरोधी. सामी विरोधी मीन्स होता है नस्ल विरोधी. क्या होता है? नस्ल विरोधी. तो एंटी सेमेटिक जब बोलते हैं तो ये होता है एक नस्ल विरोधी. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या फिर दो लोगों के बीच में जब हम देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी अपनी चीजों के प्रति क्या हो रहे हैं? वायस हो रहे हैं. और जब वो वायस होंगे तो अपनी ही इंटरेस्ट को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे. जब अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे तो वो पर्टिकुलर जगह या फिर एरिया सिर्फ वहीं तक वो क्या हो जाएंगे? वहीं तक रह जाएंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी सेमेटिक बोलेंगे. ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एंटी सेमेटिक बोलेंगे, मतलब नस्ल विरोधी ग्रुप बोलेंगे. जैसे कि हम सिनोनिम्स देखते हैं, प्रेजुडिस, ओके, बाइगोटेड, इंटॉलरेंट. अब दो ग्रुप के बीच में अगर दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है? वायस है, वो प्रेजुडिस है. प्रेजुडिस मतलब कि पक्षपात है, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट है वो पक्षपाती है, मतलब सिर्फ अपने को ही प्रमोट करना चाहते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? उनका इंटॉलरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. टॉलरेंस नहीं रहेगा उनके अंदर, इंटॉलरेंस हो जाएंगे. तो इंटॉलरेंट, नैरो माइंडेड. नैरो माइंडेड क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह के बारे में सोच रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर नस्ल के बारे में सोच रहे हैं, या सिर्फ उनके ही जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करना चाहते हैं.
ठीक है, अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, नैरो माइंडेड या फिर स्मॉल माइंडेड. दिस इज सेम, नैरो माइंडेड, स्मॉल माइंडेड, राइट. बायस, बायस और प्रेजुडिस मतलब कि पक्षपात. ठीक है, तो एंटीसेमेटिक कैसे ग्रुप होते हैं, एंटीसेमेटिक कौन होता है, जो कि सामी विरोधी, जिसको बोलेंगे हम नस्ल विरोधी, मतलब ऐसा व्यक्ति और ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी ही चीजों के लिए प्रति प्रेजुडाइज है, अपनी ही प्रति, अपनी चीजों के प्रति क्या है, पक्षपाती है, और वो क्या करना चाहते हैं, अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं. ठीक है, लेट जस्ट मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इम्ब्रोलियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो जी है दैट इज व्हाट द साइलेंट. ओके, इम्ब्रोलियो. ऑलराइट, इम्ब्रोलियो, नॉट इम्ब्रोग्लियो. सो इट इज इम्ब्रोलियो. एंड व्हाट डज मीन, इट मीन्स अव्यवस्था. ओके, और गड़बड़ी. क्या हो जाएगा, अव्यवस्था और गड़बड़ी. तो किसी भी तरह की अव्यवस्था होना, उसमें कंफ्यूजन होना या कॉम्प्लेक्सिटी होना या प्रॉब्लम होना या डिफिकल्टी आना या उसमें कोई परप्लेक्सिटी होना या कंफ्यूजन होना, दैट इज व्हाट वी कॉल इम्ब्रोग्लियो. इम्ब्रोलियो. ओके, इम्ब्रोलियो. क्या बोलेंगे, किसी भी अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी को हम कहेंगे इम्ब्रोलियो. ऑलराइट, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन, complexity, problem, difficulty, confusion और muddle. ओके, और इसको क्या बोलेंगे, an acutely painful और embarrassing misunderstanding. कैसा, an acutely painful, बहुत painful और embarrassing. कैसा है, embarrassing misunderstanding जो है, this is what we call imbroglio. okay, imbroglio. हिंदी में क्या मतलब है, अव्यवस्था और गड़बड़ी. ठीक है, ये क्या है, हमारा नाउन है. तो हमारा सेशन खत्म हुआ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज वानी हियर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद वानी, एंड लेट्स स्टे कनेक्ट विद मी एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, and let's just meet tomorrow. Bye bye, take care all of you.